Okay, it's recording. Okay, guys, I hope you can hear me. आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, fine. So today, since we have some time, we can say start practice little bit about public speaking also. Okay, so normally it takes time. Okay, normally like Shubham. Okay, Yes, role of edutech companies in education. Okay, role of edutech companies like Byju's in providing quality education to masses. ठीक है, that is आवाज किसको नहीं आ रही है भाई? ईशांत, यू कांट हियर मी? ईशांत अनम्यूट करो अपने को. ईशांत, लेट हिम कम बैक. ईशांत, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, अब आ रही है. ओके, अच्छा, टॉपिक अभी का है द रोल ऑफ एजुटेक कंपनीज लाइक बायजूस इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन इंडिया. It may be good and bad, whatever thing is, ठीक है? So that is there. You have to speak around 2.5 minutes. And I'll start with Shubham. Okay, Shubham, आप शुरू करिए. तुरंत शुरू करूँ कि सर I take 1-2 minutes? Okay, take 30 seconds. Yes. Okay. बाकी लोग भी अपना think about it. ठीक है? कि these edutech companies जो आ रखी हैं, इनका are they useful, are they not useful, what is their role in providing education in India? So everybody take 2 minutes जब तक ये तैयार कर रहा है. Think about it and we'll start. Akash, you are ready? Yes, sir, ready. रुक जा पहले इसको. Let Shubham finish and then तब तक अपना point बनाता रहे. Keep on thinking. Yes, sir. Let Shubham start and you start. Shubham, when you are ready, you can start. Yes, sir. Can I start now? Yeah, go ahead. Very good evening, gentlemen. Today I am going to speak on a very interesting topic, that is quality education by edtech companies. So as we all know that edtech companies are those companies which provide education by means of online medium. And right now in India and in the world, we have seen the use of edtech company in a very large number. Why? Because the recent disruption in studies that we had witnessed through COVID-19 and all those led to a high revenue for the edtech companies, and we have seen a large number of growth in terms of edtech companies like Byju's, Scalar, Vedantu. We are surrounded with edtech company right now everywhere. Even if we want to go for defense courses, there are edtech companies there like GradeUp. If we want to go in order to enhance our skills, there are great learning like platform. So edtech companies are everywhere, but this company are providing quality education. Just try to think that by click of one mobile, we can connect with the best educator of the world. We can connect with the best teachers. We can learn a lot of things from the best teachers of IITians, or whether they are from IIM. These quality teachers are now available to us in click of one click only of mobile. We can connect with them and we can learn from them. This is the revolutionary thing that edtech company is brought up in our society. Apart from that, because of edtech company, now we can study things according to our own convenience. Like earlier, we used to go for the coaching academies and all those, and it used to be very far, and there is a traveling and other things that need time. But right now, because of edtech companies, we can sit at our own home and we can study through it at as per our convenience and things. Apart from that, because of edtech companies, the education cost also went very down, because earlier the coaching academy used to charge very high price, and whenever we used to go for the coaching academies, there are various fees of transport that we have to include. Apart from that, the service charges which we need to give to the coaching academies. But right now, because of the edtech companies, these are available to the people at a very convenient rate to the masses. So that is the best thing that happened. However, few things that we have to take care of, like the edtech companies are taking the help of insecurities of people in order to boost their business. And apart from that, there is internet penetration that is still needed in India in large number. So if these two things happens in our country or in the world, then this market can touch each family
and everyone very easily. Thank you very much and have a good day. Okay, fine. As क्या बोलते हैं, expected. Okay, it was your bread and butter, so you spoke well. Time ध्यान रखना है, ठीक है. अगर 2 मिनट दिया तो 2 मिनट में बोलना है, ठीक है. अगर 2.5 है 2.5. You have taken more than 3.5 4 minutes, तो आपको उतने में ये करना है short list. Okay, आकाश. Okay, sir. So, hello everyone. My today's topic is EdTech companies in India. So, first of all, what is EdTech? EdTech is short for education technology, which means uses of computer and computer programs in educational systems, which provide learning and training to students and employees, whether it is technical terms or non-technical terms. So the goal of EdTech is to improve student outcomes, enhance individualized education, and reduce the teaching burden on instructors. It provides fun in the education sector. So while many praises technology in the classroom, others fear that it is impersonal and can lead to data collection and tracking of both students and instructors. So now we can talk something about benefits of EdTech companies in India. Tech provides more immersive learning. It customizes learning for each student. For example, a student which is weak in any subject, he can schedule his priorities in according to him. And if a student is brighter in subject and weak in other, so he can schedule that subject in according to him. So next is technology provides easy access to more learning resources. The resources can be customized and collected at one place. So tech adds fun to learning. It can be the learning can be done by some cartoon factors or some interesting ways which can be included in it. It increases the collaboration of teachers and other instructors at one place. Technology better prepares students for today's jobs. Like one of our friends has spoken about it. So someone who doesn't know about doesn't have an experience of technology, but he can work according to it and with any tech company by studying online or with edtech companies. Technology teaches about digital life also. The factors which we should see about it is that we should think that it doesn't hamper our mind and thoughts. Thank you. ओके आकाश मच बेटर, ठीक है. जो फर्स्ट टाइम आपने कोर्स किया था उसके बाद से और अब में जमीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है. आपका बोलने का इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपका कंटेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, ठीक है. टाइम का ध्यान रख, बाकी अदरवाइज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. चलो ईशांत. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, gentlemen. So my topic is EdTech companies in India is a boon. This might answer your question. Sorry, sir. Topic is manufactured by Mars. My topic is EdTech companies in India. We have in the current COVID situations, there are a lot of opportunities in the technology field. This opportunity was also taken by the education sector, and it is the fastest catching up trend in the market today. Beside from the necessity, but it also provides a better environment as we can stay home, and the parents can look at after this child what is he learning. It is a daily feedback system.
It is not only limited to a small number of people. A wide number of people can access it anywhere. Uh, as education nowadays is very costly, there are many private schools, and the situation of government school is not so good in many areas. This edtech companies, they support the government by providing them funds and providing them necessary equipment through which children can learn. Also, this is not just about the basic learnings. This is about sports. We can learn about sports in, like, for example, we can have online sessions about if a person is playing chess, so he can learn from a grandmaster, which is not very popular in India. So it has a vast area to cover, and I think that it is a boom, and it would educate many people. Thank you. ईशान ठीक है, बट आपको थोड़ा सा फ्लुएंसी और लाने पड़ेगा अपने बोलने में, ठीक है? अब रुक रुक के बोल रहे हो, थोड़ा अटक रहे हो अपना जो है, तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। देखेंगे बाद में कैसा है आपका, क्या नहीं है, बट ये थोड़ा सा मुझे कमजोर लगा आपका हिस्सा पब्लिक स्पीकिंग वाला, ठीक है? नाउ गाइस विल मूव ऑन टू द वर्क। और कोई बच तो नहीं गया अभी? आप 3 ही हो आज। ओके, सो टुडेज क्लास जो है, यू कैन सी माय स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। Let me just check it up. Just hold on. Yeah, practice test. Where did I keep it today? Okay, so this is the practice test. Let me download it first. Then okay, so firstly VAT का last में we'll talk about it in the end. Now SRT में आपका जो है, some person are climbing mountain, one of them loses grip and rope falls down. ठीक है, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन हाई होता है, ठीक है, एंड इट्स अ सीरियस थिंग। आपका जो है फ्रेंड जो है अपना गिर गया है, एंड इमीडिएटली व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट, ठीक है, कॉल अप से इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, हेल्प टू से गेट द फर्स्ट एड एंड ऑल, एंड इवैक्यूएट दैट पर्सन, ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स जो अपना जो आती हैं वो आप लिख सकते हो उसका। कोस्टल एरिया, साइट सीइंग, सडनली स्टॉर्म स्टार्ट्स अप्रोचिंग, टाइड इज राइजिंग। तो एक तो ये है कि स्टॉर्म आपको दिख गया है, आपने किस तरह से अलार्म रेज किया, किस तरह से आपने से लोकल अथॉरिटीज को बताया, हाउ यू अलर्टेड दिस थिंग एंड हाउ यू गॉट योर आउट योरसेल्फ, वो इंपॉर्टेंट है। क्लोज फ्रेंड ऑफिस इज बीइंग हरास्ड, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका हरासमेंट चल रही है, देन अगेन यू हैव टू देन से गिव हिम कॉन्फिडेंस, हेल्प हिम टू से फाइल दैट काउंटर हरासमेंट जो होती है, एंटी हरासमेंट जो है हेल्पलाइन जो है, help him to say file that complaint and whatever thing is there. फाइनल डिग्री हो रहा है, जॉब कॉल कल है, एंड फाइनल डिग्री एग्जाम भी है, एंड देन जॉब का भी इंटरव्यू आ रखा है। सो अगेन एग्जाम कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, बट जॉब इंटरव्यू कैन बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, एंड वर्स कम वर्स नेचुरली एग्जाम्स टेक्स प्रायोरिटी, सो यू कैन से रिक्वेस्ट द कंपनी टू पोस्टपोन दैट एंड गिव द एग्जाम। देन पार्टी लॉन में आपकी पार्टी थी, अगेन बारिश हो गई, गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा हैं, इस अगेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्लान बी आपने क्या किया हुआ है कि आपने ऑलरेडी, हमेशा जब भी हम पार्टी वगैरह जो बड़ी चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं बाहर, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, कि अगर ये हो जाएगा तो ये करेंगे, ये हो जाएगा ये है, सो यू हैव टू राइट अबाउट योर प्लान बी। प्रमोशन का है, समवन क्लोज गिव्स हिम अ बैड न्यूज़, ठीक है, आपकी किसी बॉस की प्रमोशन पार्टी चल रखी है, ठीक है, आपको कोई बुरी खबर मिलती है, इट मे बी एक्सीडेंट, इट मे बी डेथ ऑफ समबडी एंड ऑल, सो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, क्वाइटली बॉस से बात करके बाहर जाते हो, या वेट फॉर दैट फॉर द पार्टी टू ओवर एंड देन गो आउट, बोथ द थिंग्स आर देयर, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, कैसे आपने उसको हैंडल किया है। देन अपना जो है सार्कास्टिक रिमार्क्स जो हैं, आपके घर में आपकी पार्टी चल रखी है, ठीक है, आपका जो एल्डर ब्रदर है उसने आपको जो है कुछ बोल दिया आपके बॉस को, एंड बॉस जो है गुस्से में चला जाता है, गेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज आपका बॉस है, नौकरी जा सकती है, कैसे आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, ठीक है, इमीडिएटली से अपोलोजाइज टू द बॉस, आस्क योर ब्रदर टू बी केयरफुल अबाउट दैट, नेवर टू डू, दोनों को आपने हैंडल करना है उसमें से। देन कॉलेज में है, साइकिलिस्ट हैज बीन नॉक डाउन, ईजी है, ठीक है, आपका जो है क्या आपका करना है, इमीडिएटली कॉल अप पुलिस और
whatever is there, से हेल्पलाइन नंबर जो होता है, इस बंदे को भी एम्बुलेंस में डाल के घर उधर हॉस्पिटल छोड़ के आना है। देन मैरिज चल रही है दोस्त की, एंड हिज फादर गॉट अनॉयड ड्यू टू नॉन रिसीप्ट ऑफ डॉरी। ठीक है, उसको डॉरी नहीं मिली, दे वोट वेंट अवे आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बाय हैंडलिंग ब्राइड एंड फादर। ब्राइड हैज बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, आपका दोस्त है, दोस्त की शादी है, लेकिन वो और उसके बाप जो है जाके वो बोल रहे हैं कि भैया ये नहीं है एंड ऑल दैट, हमने शादी नहीं करेंगे, ये है डॉरी नहीं हुई है एंड ऑल दैट। ठीक है, और सबने रिक्वेस्ट किया एंड बोथ वेंट अवे। ठीक है, तो बोथ वेंट अवे इवन आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, सो अभी ये है कि भाई उन्होंने शादी तोड़ दी है, ये हो रखा है। So first of all, first thing is कि okay, where a bride has become unconscious, you have to do your duty as a citizen. तो आपने उसके लिए एम्बुलेंस बुला के उसको कियो, and then say either request these guys to do or say tell them or guide them कि भाई this is against the law and they should accept this thing, or report the same to anti say bribery helpline और जो भी आप कर सकते हो. Both the things have to be done here. He was taking father's treatment, wheelchair coming out though, slipped on banana peel, got his joint fracture. ठीक है, आपका जो है बेसिकली आपको लेके जाना है, खुद भी आप इंजर्ड हो गए हो, क्या करना है, कन्वेंस ऑलरेडी है नहीं। देन अगेन उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आपने फर्स्ट एड लिया, फादर को फर्स्ट एड लिया, मे बी वेटेड, कॉल एम्बुलेंस एंड ऑल, और कॉल अ फ्रेंड इन सच ए सिचुएशन। ठीक है, आपका जो है बिकॉज देयर इज नो इमरजेंसी। ठीक है, यूज फादर व्हील चेयर में है, आपका भी जॉइंट फ्रैक्चर टाइप लग रहा है, सो आप किस तरह से एनी ऑफ दोज थिंग्स कॉम्बिनेशन, कॉल अप योर फ्रेंड, यू योरसेल्फ डू। सब बेस्ट इन चीजों में होता है आपका अपना एक्शन क्या है। बेस्ट इसमें से अगर रिएक्शन दिया जाता है, अगर कोई बोलेगा मैं किसी दोस्त को बुलाऊंगा वो लेके जाएगा, ओके दैट इज वन। पड़ोसियों को बुलाऊंगा लेके जाऊंगा, पेरेंट्स को बुलाऊंगा लेके जाऊंगा। तीसरा होता है कि मैं खुद अपने आप को फर्स्ट एड लूंगा, एम्बुलेंस बुलाऊंगा एंड देन आई विल गो, दैट इज द बेस्ट रिएक्शन कि भाई आपने इंडिविजुअली क्या किया हुआ। देन उसके बाद जो है आपका सिनेमा हॉल, सीइंग द पिक्चर, सम बैड एलिमेंट्स, टीजिंग अ गर्ल। ठीक है, सबसे पहले अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो एंड देन आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। Going taxi, train moving health throws a person and runs away. Again taxi आगे है, presence of mind, पुलिस, एम्बुलेंस, ठीक है, वो सारा काम करना है यहाँ पे। हॉकी मैच, टर्न अप, बोथ टायर्स ऑफ स्कूटर आर फ्लैट। ठीक है, हिज फ्रेंड डज नॉट टर्न अप, आपका दोस्त के साथ जाना है, आपका जो है दोनों टायर जो है फ्लैट है, कैसे आप करते हो। ठीक है, यू कॉल एम्बुलेंस, यू टेक अ टैक्सी, यू टेक अ बाइक, यू टेक अ हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड, वट एवर थिंग्स आर देयर उसमें ऐड करना है। 10 people quarreling over a purse fallen from a bus. Police have approached and they have run away and is found, and he is found with purse by the police. Police takes him to the police station. ठीक है, 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस आती है, तो वो पुलिस जब अप्रोच एंड दे हैव रन अवे एंड ही इज फाउंड बाय द पर्स, कि भाई वो जाके उसके सामान में पर्स छोड़ के चले गए हैं और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो वो आपको वो देखना है उसमें से, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू कन्विंस द पुलिस बाय टेलिंग कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, जैसे हुआ है। दोज आर थिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन दैट। गोइंग टू एसएसबी, लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग टिकट। तो आपने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपका सामान है, आपका टिकट चला गया है, वो चला गया है, किस तरह से आपने उसमें से हैंडल करना है सिचुएशन में है कि आपने से इमीडिएटली योर फर्स्ट थिंग शुड बी कि ईमेल या आपने जो है डिजिटल लॉकर से लेके आपने अपने जो है एसएसबी के डॉक्यूमेंट्स निकालो, गेट सम मनी एंड देन अटेंड द एसएसबी। दिनेश, अपने आप म्यूट क्यों नहीं कर सकते हो बच्चे? आप म्यूट करके दिखा मुझे कैसे करते हैं। एक चीज बता रहा हूँ, म्यूट अनम्यूट करना कैसे करना है, तुम अभी तक वो नहीं सीखा है। इंडियन आर्मी का, हाँ अभी समझ गया। ठीक है, डांट खा के चीजें नहीं सीखनी है, खुद सीखो इन चीजों को। ओके, TAT 1 में जो है इज क्लियरली सिचुएशन ऑफ अ कैंप, मे बी कैंप हो सकता है, मे बी फायर फाइट हो सकती है। देयर सोल्जर्स जो उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, साइडों में आपकी जो है अपने इन्होंने राइफल पोजीशन ले रखी है, ये LMG पोजीशन है। सो आप इसके ऊपर कुछ भी आप स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, कि अपना आर्मी ऑफिसर के ऊपर ही वाज टास्क्ड टू से प्रोटेक्ट दिस थिंग, कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया, क्या नहीं किया, उसमें कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बना सकते हो कि भाई ओके वो प्लाटून वहाँ लेके रखा था, सो एक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक इसकी डिटर्मिनेशन हो सकती है कि भाई किस तरह से इसने ऑफिसर बनना चाहता था, बन के गया, वहाँ पे जाके बॉर्डर पे उसको डिप्लॉयमेंट हुआ एंड ही डिड अ गुड वर्क। एक हो सकता है आपकी ब्रेवरी दिखा सकते हो कि भाई एक्चुअल फाइटिंग इज गोइंग ऑन, फाइटिंग में ये हुआ, हाउ ही हेल्प हिज, हाउ ही वेंट अहेड एंड से कैप्चर्ड एनिमीज पोस्ट और समथिंग लाइक दैट। उस टाइप से आप 3-4 टाइप के थीम्स इसमें दिखा सकते हो, आप 3-4 टाइप की OLQs आप इसमें से दिखा सकते हो। TAT 2 में आप देखोगे यहाँ पर एक आउटडोर है, पीछे मैंने हमेशा बोला आउटडोर देखा करो क्या है। आउटडोर है, पेड़ है, बाहर का है, मे बी गार्डन और समथिंग लाइक दैट, और दे आर किड्स, बच्चे हैं, लड़कियां हैं मोस्टली, एंड दे मे बी अराउंड कम से कम 200-300 तो मुझे दिख रही है यहाँ पे। हाथ में कुछ इन्होंने वो पकड़ा हुआ है, पेपर टाइप पकड़ा हुआ है, बुक पकड़ी हुई है,
और जो सामने लड़की है ये हंस टाइप रही है यहाँ पे, देयर इज वन गाय वो कुछ उसको बोल रहा है कुछ करने के लिए एंड ऑल। सो इट मे बी एनी ऑफ दैट थिंग कि भाई एग्जाम से पहले जो है बाहर जो खड़े होते हैं अपने ग्राउंड में जो है, इट मे बी दैट गेट टुगेदर देयर, इट मे बी अनदर गेट टुगेदर आफ्टर द एग्जाम, रिजल्ट से पहले होता है। इट मे बी समथिंग लाइक मे बी टैलेंट इंडिया के लिए जो है और इंटरव्यू के लिए कोई लोग आ रखे हैं, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, एंड देन हाउ दिस गर्ल्स जो है से परफॉर्म्स और हाउ दिस गर्ल्स से लाइटन द मूड ऑफ अदर्स, है ना, उस टाइप के कुछ भी चीज आप इसमें से दिखा सकते हो। ठीक है, आज शौकित वी हैड 2 ओनली, नो वी हैव थर्ड आल्सो पीपीटीटी। इसमें से आप देखोगे यहाँ पे रूरल, अगेन बिल्कुल रूरल है, बहुत खेती बाड़ी चल रही है, कुछ नहीं है, और एक लड़का नंगे पहुंच जा रहा है यहाँ से, अपना रास्ता नहीं है, तो बहुत यहाँ क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विलेज में नहीं है। आप यू कैन ऐड अनदर कैरेक्टर, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, न्यूली पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, न्यूली अपॉइंटेड सरपंच हो गाँव के, कैसे आप वहाँ पे से रोड वगैरह का करते हो अरेंजमेंट, कैसे आप वहाँ पर से अपना जो है एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, 2-4 चीज़ें लिख दोगे तो दैट इज मोर देन एनफ, नाउ आ जाएगा इसमें से। So this is all about today's work. Let me go back to your thing. अब सबसे पहले किसका है, ईशांत का है यहाँ पर। यार इसको कैसे कम करूँ मैं? ओके, लेट मी जस्ट डू इट अदर वे राउंड। ओके ओके, नाउ वैट में अगर आके देखते हैं शांत का, मदर इज द सिंबल ऑफ लव, ओके दैट्स फाइन, ओके, praise for small work leads well from a person finishes all 4 times, season persons always shine bright, फाइन, ठीक है, ओके चल जाएगा, वेल प्लान अटैक लीड्स टू विक्ट्री, मीटिंग डिफरेंट पीपल, फाइन, फ्रेंड्स कंपनी रिमूव्स लोनलीनेस, हार्ड वर्क हैज नो बॉर्डर्स, फाइन, ऑनेस्ट मैन एंड नथिंग टू हाइड, ओके, ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, यू कैन मेक हिम पॉजिटिव ऑल्सो, प्रैक्टिस हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ब्लंडर्स, स्किल्ड एयरफोर्स पायलट, ओके, स्मॉल इनिशिएटिव, फाइन, डेस्टिनेशन फाइन, सेलेक्टिंग मैनेजमेंट हेल्प, ओके, ठीक है, वीकनेस एजुकेटेड पर्सन, ठीक, फाइन। तो आपका जो है ईशांत, आपका वैट इज जनरली फाइन, ठीक है, तो आप इसी के ऊपर काम करो, थोड़ा सा अपना वर्क ऑन लिटिल बिट ऑन हैंड राइटिंग एंड वर्ड थोड़ा क्लियर करने में, एंड इसको छोटा लिख के अपना जो है आप अगर यही प्रैक्टिस कर लोगे तो वैट आपका ठीक आ जाएगा। सो वैट इज जनरली नेवर अ प्रॉब्लम, सबके साथ ही मैं ये बोलता रहा हूँ, वैट में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती आप लोगों से। मेन चीज़ आती है आपकी जो साइकोलॉजी वाला है, वहाँ पे आप गड़बड़ करते हो। सो लेट मी जस्ट चेक इट अप दैट। Then he springs towards the person falling, helps him to re-grab the rope. Again बेटा इसमें लिखा है one of them climbing, one of them loses the grip and falls down. ईशांत यहाँ पे लिखा ये हुआ मिस कर दिया, गिर गया वो, थोड़ा सा तो आपको मतलब है ना, so you have taken wrong it जैसे let the nearby people, let the coast guard help in evacuating elders and children, get them to safety, ठीक है। अभी आपने nearby people कर दिया, coast guard कर दिया, help in evacuating, ठीक है। अभी आपने जो थोड़ा सा now start reducing this, जो आप 3 लाइनें लिख रहे हो इसको 2 में पूरा करो, ठीक है। आपको यहाँ अंग्रेजी नहीं दिख रहे हैं अभी, अगर आपने लिखना है अलर्टेड पीपल और कॉल्ड अथॉरिटीज, इवैक्यूएटेड चिल्ड्रन एंड वुमेन, ये आप इतने में लिख सकते हो 6 सेंटेंसेस में, ओके उतना ही लिखना है और उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, तो ट्रिप्टिक बना के जाओ। Finally, he went to and embrace to anti-harassment committee, help his friend complete this. अब इस सब का आप लिख सकते हो, ठीक है ना, से encouraged और helped friend file complaint in anti-harassment committee, बस उतना ही लिखोगे तो आपके 7 वर्ड्स में आ जाएगा। He called the interviewing authorities, gave valid reason, proof of examination, reschedule, find the exam. Again बेटा आपने एग्जाम रीशेड्यूल करवा दिया है, समझ गया? एग्जाम जो नहीं सर, इंटरव्यू रिशेड्यूल करा, वैलिड रीजन, प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन, सर वो लेफ्ट में इंटरव्यू लिखा था, थोड़ा कट गया थोड़ा, चलो फिर ठीक है, अगेन ठीक है। तो आपने देना है यहाँ पे, अगर इसी को करता है से कन्विंस्ड इंटरव्यूइंग अथॉरिटी टू पोस्टपोन द कन्विंस्ड इंटरव्यूइंग अथॉरिटीज फॉर पोस्टपोनमेंट, गिव द एग्जाम ऑन टाइम, बस उतना ही करोगे,
थोड़ा लिखना है Okay. तो बनाना है, तो पूरा नहीं होगा अदरवाइज। County committee made all the necessary arrangements, made everyone to go to in-house party. Contact the nearby tent house. अब ये है कि आप उस टाइम कर रहे हैं, now you are reacting to a situation, समझ रहे हैं? Your plan B should have been already done. आप उस टाइम देखो पार्टी में लोग आ रखे हैं, उस टाइम तुम टेंट को फोन करेगा कि आ जाओ, 1-1.5 घंटा तो साला टेंट वाले आते हैं, फिर वहां तंबू लगाएंगे. So this is completely impractical situation what you are giving me here. So, so it should be something different. He activated his plan B, moved the people to a nearby shelter, or moved the people to a hotel, or moved the people to a inside lawn and conducted the party there. कुछ भी हो सकता है उसमें से. Okay. Brother to company is bossed until he returns. Brother to company, he addressed the news. ये क्या तुमने कुछ company is boss, okay. Grant address the news. आपने बॉस से बात नहीं करी ना, सबसे पहले तो आपने उससे करनी है. इससे तो आपने कहीं नहीं लिखा, आपने ब्रदर को बोला कि मेरे बॉस को कंपनी देना, मैं जा रहा हूँ. बट जिसको तुम बुलाया एटलीस्ट उससे बात करोगे तो ही माइट अंडरस्टैंड. नीड डाइवर्टेड द कंपनी ट्रैफिक, हेल्प द साइक्लिस्ट. ठीक है, ट्रैफिक का डाइवर्शन वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अपना ये करोगे ज़्यादा अच्छा. Called an ambulance, talk to friend, father, convince them not to take dowry by stating the merits of the bride. Okay. All the friends living nearby convinced them to provide the car and took his father to the north. Okay. आपने मतलब फ्रेंड को बुलाया, कार में बुलाया आपने उसमें से, ठीक है. बट वही होता है कि जैसे हमने देखना होता है. So but इसमें फ्रैक्चर हो गया था ना क्योंकि उसे. हाँ वो ठीक है, बट बिल्कुल कॉल एम्बुलेंस, यू कैन टेक समथिंग लाइक, चल जाएगा. वो कन्वेंस अलाउड नहीं थी ना 10th वाले में. That's fine. Convince other people to help him. Low power the culprits and hand them over. अब ये 11th वाले में है. Some bad elements were teasing a girl. It's not, अभी मतलब टीजिंग होता है कि भाई दूर से खड़े होके कुछ बोल रहे हैं उसको. टीजिंग लिखा है यहाँ पे, है ना, ये नहीं लिखा हुआ Yes, कि, sir. है ना. तो टीजिंग के लिए यू आर सेइंग ओवर पावर्ड द कल्प्रिट्स, यू आर मतलब स्टार्टेड फाइटिंग विद देम, समझ रहे हैं. Yes, sir. तो मतलब यू आर, आपने बात को बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे पहुँच के जे नहीं है. इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज, ठीक है, इन्फॉर्म्ड, कॉल्ड अप मे बी, और कॉल्ड अप पुलिस एंड गॉट दोज पीपल they arrested or maybe dealt with law, got those people removed from the theater, something like that, rather than fighting. लड़ना नहीं शुरू करना है यहाँ पे. Made the driver stop the car, noted the taxi number. Again आपका जो 12वां है, taxi throws out a person and runs away. टैक्सी में जा रहे हो, आपने जो दूसरा जो आगे जा रहा है उसको फेंक के चला गया, आपने कहा है he made the driver noted the taxi. अच्छा, आप अपने को अपनी वाली कार. हाँ. तो इतना नहीं लिखना है, जस्ट नोटेड टैक्सी नंबर, इतना ही आना है. ओके सर. इतना नहीं करना है. गो टू हॉस्पिटल, बाकी ठीक है. टेक द लिफ्ट फ्रॉम अ नियरबाई पैसेंजर टू सिटी एंड played the match. Okay. Calmly follows the police and told them about the situation. Check the security. Okay, fine. He immediately contacted the TT about the theft. As train did not stop, they found the thief. Again ये नहीं लिखना है ना, तुमने लिखा है you started imagining things. ये ट्रेन रुकी नहीं है, मेरा पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, that is all this thing. आपने क्या करना है, क्लियरली यहाँ दिखा कि भैया गुम हो गई है आपकी जो है. उसके बाद आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, यार आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि चोर पकड़ा गया तो मैं ये करूँगा. आप अपने लेवल पे कर सकते हो, प्रिंट निकालो उसके, वो करो, FIR लॉन्च करो उसके बाद RPF के पास, एंड देन गो एंड अटेंड द SSB. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. 20 years college student, he was leader of NCC. One they told about training camp in the mountains, one of the all equipment carry the trip for the camps, this all set up of this thing. Okay, so आपने NCC ट्रेनिंग कैंप रखा है, वर्केबल, फाइन, चल जाएगा. Sita was a college student who was in the final year. One day home she saw a hospital was cramped. Hospital was cramped. Okay, she got to know the reason as side. Dengue cases, about the controlling dengue, mosquitoes. She called her other classmate. ये ठीक है, पर यहाँ देखना, यहाँ पे they are around 200 people. दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा एक बड़ी सी गैदरिंग है यहाँ पे. और अदर क्लास मैंने कैंपेन का सोचा था लाइक कि कैंपेन करेंगे. लग नहीं रही ना कैंपेन टाइप की, मतलब एक पूरा असेंबली हो रखी है, नीचे तक पीछे तक जहाँ तक दिख रहे हैं लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. आइडिया थोड़ा सा ठीक है, बट इट्स नॉट मैचिंग एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड यहाँ पे. ना तो एड्रेस कर रही है, बाकी ठीक है. आई विल नॉट से 100% रॉन्ग. While living in a remote village where their source of income, get up early, family, daily classes. आपने इसके ऊपर लिखा है कि आपने इस बच्चे ने कैसे कर रखा है, बट आप देखोगे बड़ा छोटा सा बच्चा है,
नॉट इवन कॉलेज, बस ध्यान से देखेगा मुश्किल से मतलब है ना 8-10 साल का बच्चा भी नहीं दिख रहा है, नंगे पहुंच जा रहा है। एज टेंटेटिव नहीं ले सकते लाइक अपने से? बट है ना, यू कांट मेक अ बड़ी 6th क्लास गाय अ कॉलेज स्टूडेंट, उतना नहीं कर सकता। ओके जहाँ पे डाउटफुल है वहाँ पे कर सकते। अब जैसे इस लड़की की आप जो है, या इस बंदे की, ये जो है यहाँ पे बंदा जो है, इसको यू कैन राइट इन 16 ऑल्सो, 22 ऑल्सो, 26 ऑल्सो, चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं इनका, आप 22 भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, चल जाएगा। बट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है ये, ठीक है ना, छोटे से जूते पहने हुए हैं, कुछ नहीं है, वो करके रखा है उसने। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो बात नहीं बनी, ये वाला चीज। थोड़ा सा इसको कॉलेज स्टूडेंट का जो है डिफरेंट, निक्कर पहन के घूम रहा है ना, निक्कर पहन के, छोटा सा बस्ता, नंगे पाँव, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं वैसे दिखते हैं, वैसे करते हैं। थोड़ा सा उसको लेकर किसी का ही करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक हिम से मे बी 10th क्लास और 11th क्लास, मे बी समवेयर उतना कर सकता है, पर उतना ज़्यादा भी खींचो मत उसको, ऐसे Okay. जैसे आप इसको कर सकते हैं आप। थीम आपका ठीक है, तो थीम वाइज नॉट ए इशू, बाकी अदरवाइज ठीक है आपका, मतलब यू आर ऑन द राइट लाइन। थोड़ा सा स्टिमुलस के ऊपर और ध्यान देना शुरू करें, बाकी देखते हैं आगे जैसे जैसे बाकी चीज़ें आएंगी, हाउ थिंग्स कम अप। ठीक है सर। है बाकी शुभम। सर प्रेजेंट। लेट मी सी योर्स। मदर इज ओके 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 ओके, आपका वैट इज फाइन। आर द ग्रेट टीचर, ओके ठीक है, ओके। डिटर्मिनेशन हाई, ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है, अवॉइड करो। रादर जहाँ पे आपका वो है ना कि व्हेन यू हैव अ चॉइस और दिस थिंग बिटवीन बीइंग फिलोसफिकल एंड बीइंग प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। से अगर इसमें आप कर सकते हो ट्रेजेडी वाले में, से प्रायर प्लानिंग अवॉइड्स ट्रेजेडी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, समझ रहे? बाकी अदर परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं। मेजर कुलदीप वांट्स टू वर्क 9 पैरा, inputs from local sources or terrorist starting number in sources, good permission from CEO, plan strategy, discussing ambush of he distributed work। अब बेटा इसमें ना देखो, आपको जो आपने लिखा हुआ है टेररिस्ट हाइडिंग इन जंगल्स ऑफ कुपवाड़ा, ठीक है ना। तो अगर टेररिस्ट के लिए ना, तभी मैं कहता हूँ फौज का तभी लिखो इफ यू आर श्योर अबाउट दैट, ठीक है। टेररिस्ट वगैरह के लिए ना आपका जो है इस तरह से LMG पोस्ट एंड ऑल, इस टाइप का जो है, दिस डिप्लॉयमेंट इज नॉट फॉर टेररिस्ट ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। दिस प्रॉपर टाइप ऑफ मिलिट्री कैंप ऑन अ हिल टॉप। सो आपका जो है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये। सो थोड़ा सा समझ के कि क्या होता है मिलिट्री ऑपरेशंस का, अगर ज़्यादा ध्यान नहीं है तो यू कैन राइट, जैसे उसने लिखा था ईशान ने, NCC कैंप लिख सकते हो अपना। बट देन इफ है ना, दिस नॉट अ कॉर्डन एंड सर्च और दिस नॉट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। उसमें इस तरह से बंकर बना के कभी आर्मी नहीं बैठती है। यहाँ LMG बंकर बनाया हुआ है, LMG बंकर इज नेवर मेड फॉर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, दोज आर टेम्परेरी ऑपरेशंस। टेम्परेरी आप पोस्ट लेते हो फिर निकलते हो आगे, टेम्परेरी पोस्ट ले रहे हो फिर आगे निकल रहे हो, दिस इज अ परमानेंट टाइप ऑफ कैंप। Vivek was professor of botany SB. He is preparing student for NET. In order to clear his student, he decided to make a trip to botany. Okay, to permission. थोड़ा सा okay acceptable है कि आप लेके गए हो, प्रोफेसर उनको दिखा रहा है, ठीक है, this workable. Lives in a later okay 10th standard ठीक है, score highest in this thing, made a timetable, ये ठीक है। He also wrote books on, बेटा पर बात ये है ना, देखो तुमने बिल्कुल ही जो मैंने स्टिमुलस दिया है, तुम तो बिल्कुल ही स्टिमुलस तो तुम भूल ही गया। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, सबसे बड़ा स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? फार्म दिख रहा है सर, तो उसमें मैंने बताया कि इसके फादर को भी हेल्प करने जाता था फार्म में। यार मेजर स्टिमुलस क्या है? मेजर स्टिमुलस है कि रूरल गांव है, ना रोड है, ना रास्ता है, ना कुछ है, खेती बैल के साथ खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे बंदा इसने कर रहा है और ये नंगे पाँव जा रहा है, ये है सबसे बड़ा स्टिमुलस। अब आपका ये जो स्टोरी है, मैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में यहाँ पीछे महल भी बना दूंगा या पीछे वो भी लगा दूंगा, एक लड़का दिखाऊंगा, दैट विल वर्केबल देयर, ठीक है ना। सो योर आपका मतलब स्टोरी इज नोवेयर रिलेटेड टू द स्टिमुलस। यस इट इज देयर, but 90% of the stimulus, as you have thrown out the 90% of the stimulus you just written, इस बच्चे को मैं कहीं भी खड़ा कर दूंगा किसी भी सिचुएशन में, that will become the your story will be workable there. So you have removed the stimulus over here, ठीक है। याद रखो stimulus is the most important thing. Went to the scene to find the lost member, distribute lost नहीं हुआ भाई, गिर गया नीचे, ओके, distribute again team in group after, चल जाएगा। बट इमीडिएटली यहाँ पे माउंटेन के लिए गए हो, आपके अथॉरिटीज होती हैं, फर्स्ट एड वो अपनी क्या होते हैं, रेस्क्यू अथॉरिटीज होती हैं, दोज आर द वंस व्हिच आर देयर,
they should be immediately alerted and find that thing. Inform people around coastal areas by raising alarm, took shelter, okay, and encourage friends to talk with his boss, cleared there. Again यहाँ पे इस harassment तो काम करता है. हाँ सर, तो सर उधर HR को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने एक बात there should not be any मतलब doubt, especially for a person like you. If it is a question of, if there is a misunderstanding, there is a difference between harassment and misunderstanding. ठीक है, harassment has to be reported. And then Islam people from coastal area, inform company of exam, inform company about his postponed. ठीक है, took shelter inside home, played music, arranged games, arranged snacks for them. Took shelter inside home, okay. Continued party after solve the bad news issue, that's also okay, workable. After party met always for the mistake and arranged another party, वो भी ठीक है. ब्रदर को नहीं आपने एड्रेस किया जिसकी वजह से इशू हुआ है, एड्रेस दैट थिंग आल्सो. Informed police, called ambulance, admit person needed for CCTV help, okay. 9th, called doctor, made his friend and father understand about the dowry illegality, also gave, okay, fine. Called a shout for help, informed ambulance and call after reached spot, got treatment, fine. Informed security guard with help of knew the element from the cinema, fine, this is fine. Note down the number of taxi carried, okay, ठीक है. Gave safety to, okay. Meanwhile, motive his friend, telling his friend strength in the games and one. आप खुद नहीं गए ऊपर ना, his friend does not turn and tired. आपने खुद तो जाना है. हाँ सर, साथ में है बस. मीनवाइल मतलब जब तक गाड़ी बन रही है तब तक ही इज डूइंग दैट. नहीं यार, पहले his friend to strength in the game. आप तब तक तो मैच खत्म हो जाएगा. स्कूटी गाड़ी वाड़ी का छोड़ दो, तुम अपना जो है ये टेक अल्टरनेट, बेसिकली हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, फ्लेक्सिबिलिटी दिखनी, अल्टरनेटिव दिखाओ कि आप कर सकते हो. ठीक है ना, टेक अ बाइक फ्रॉम समबडी एल्स, टेक अ राइड ले लो, उबर ले लो यार. आज की डेट में तो तुम उसमें हो, तुम वो भी लिख देते हो, रैपिडो लिख दो, कौन मना कर रहा तुम. क्लियरिंग प्रेज अबाउट द सिचुएशन, क्लियर देयर मिसअंडरस्टैंडिंग. अभी देखो यहाँ पे ठीक है, बट कैसे थोड़ा सा और लिखे इसमें से. Clarify police institution, okay. Show e-ticket, informed SSB center of the incident. ठीक है, आपने वो भी निकालनी है अपना जो है प्रिंट आउट्स एंड ऑल फ्रॉम योर से गूगल ड्राइव और मेल्स एंड ऑल, एंड देन FIR प्रिंट आउट्स, गिव SSB एंड देन मूव ऑन. तो ठीक है तुम्हारा, थोड़ा सा मेरे को अभी भी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर TAT. ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी. बाकी जो अपने फुल सेट्स आते हैं तब देखेंगे, तब क्या होता है. दिनेश, are you there? दिनेश है या निकल गया दिनेश? ये ओके है यहाँ पे. बच्चे इसको सीधा करके चलो. ओके मैं कर देता हूँ सीधा. ओके, स्टोरी 1. समीर 30-year-old was a, क्या लिखा आपने? MAUT. He was posted in 12R battalion or Srinagar. He was camping, company commander, meaning he got information from insurgent boundary, stayed on information commander. Sanjeev named team. Major Sanjeev made plan CEO of how to cordon the hill and capture the hill. बेटा तुम कौन सी इसमें AMC में? यस सर. बेटा cordon the hill and capture the hill टेररिस्ट के लिए. ठीक है, RR बटालियन में हो तुम, टेररिस्ट के लिए कैप्चर हिल का कहाँ पे बात है? हिल तो आपका ही है ना वो. How to cordon the hill and this thing, took party and see water examination, left the anti reach on near hill, see around the hills rather than sometime wait the militants surrender. ठीक है, आपका जो ना बात नहीं बन रही यहाँ पे. कुछ मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो है वो हिल के ऊपर छुपे हुए हैं, तो तुम तो ऑलरेडी ऊपर हो, यू आर एट द टॉप ऑफ द हिल. दिख रहा है? ये आप हो या टेररिस्ट हो, ये जो यहाँ दिखे हुए हैं? आपकी स्टोरी में ये क्या दिख रहा है? आपने क्या समझा हुआ इसको? सर तो मैंने ऐसे बनाया कि जो ये पहाड़ी है इस पे कुछ टेररिस्ट आ रखे हैं, तो हम लोगों ने नीचे से प्लान बनाया कि इसको कोऑर्डिनेट करें. तुमने लिखा हुआ मैंने समझ गया हूँ, मुझे आती है अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही. मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ऊपर दिखा हुआ है, ये क्या दिख रहा है? पहाड़ी के ऊपर कौन है? ये आप हो या टेररिस्ट हो? बाद में पहुंचे हैं सर हम लोग इसमें पहाड़ी में. तो फिर ये LMG ट्रेंच क्यों बना दी यहाँ पे? अगर तुमने बाद में सबसे ऊपर पहुंच गए, मिलिटेंट्स को आपने सरेंडर कर दिया है, तो व्हाई वी मेड अ ट्रेंच? LMG यहाँ पे ट्रेंच खोद के क्यों बनाई हुई है? हाँ,
सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने टेररिस्ट को पकड़ लिया ऊपर पहुंच के, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो आपने ये एलएमजी ट्रेंच क्यों खोदी हुई है? एलएमजी ट्रेंच पता है क्या होती है? वो सर उसको एलएमजी जो एलएमजी लगाने के लिए जो बना हाँ होता है हाँ, तो उसने खोद के बनाई है, उसको एक दिन लग जाता है एलएमजी ट्रेंच बनाने में, खोद के बनाने में पहाड़ के ऊपर। तो ये टेररिस्ट को पकड़ने के बाद आपने एलएमजी ट्रेंच क्यों खोद के रखी हुई है? मुझे नहीं समझ आई आपकी स्टोरी, समझ रहे हैं? सो दिस इज नॉट मैचिंग, ठीक है? यू आर ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द हिल, यू आर कैप्चर यहाँ पे ऊपर, या तो आप कैप्चर करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हो, एनिमी के साथ कैप्चर करते हैं हिल, टेररिस्ट के साथ कैप्चर नहीं करते, आपका अपना एरिया है वो, ठीक है? सो आपकी ये स्टोरी इज नॉट मैचिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा एक बार टैक्टिक्स के लिए अगर लिखना चाहते हो तो पढ़ो, कंपनी कमांडर के पास जाओ या कोई आता है उनसे थोड़ी सी टैक्टिक्स सीखो एंड देन टॉक अबाउट दैट। Student mixed village, and this thing, father was a farmer, he 18-year-old student lived, okay, went to father school, music helping mother, domestic, back to school, stand on village road and see how the people not got sufficient grain and vegetable due to lack of after this thing BSc agriculture। देख इतना नहीं लिखना आपने, 18 years पहले तो आप स्टूडेंट हो, फिर आप एग्रीकल्चर में चले गए हो, फिर आप बने हो, वन डे ही कम्स बैक टू दिस थिंग। वो स्टोरी जो होती है ना आपकी, शुड नॉट बी दिस थिंग कि भाई मैंने 10 साल पहले देखा था, 10 साल फिर मैं पढ़ने गया, फिर मैं वापस आया एंड ऑल। आपने सिंपल बताना है कि भाई ये बच्चा है, अगर आप ये बताना चाहते हो कि भाई गरीब परिवार से है, यहाँ नहीं है, कितनी मेहनत करके अपनी फादर की भी मेहनत कर रहा है, खुद भी कर रहा है, रूरल इतने एरियाज में नहीं है, एंड देन पढ़ के अच्छा बनता है एंड देन बाद में विलेज की हेल्प करता है, वहां तक ठीक है। लेकिन आपने मतलब यू हैव ऑलमोस्ट एडेड 5-6 years ऑफ स्टोरी इन दिस, उतना नहीं डालना है, ठीक है? इट्स अ इंसिडेंट, इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट पोर्शन एज ऑफ नाउ। बॉलीवुड उतना नहीं बनाना है इसको, छोटा लिखो, क्या लिख रहे हो, जैसे मैंने बताया था, बाहर से सरपंच, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया है, क्या किया उसने स्कूल के लिए, वो आप जी सर बाकी 2 में और थोड़ा कम करो इसको, ठीक है? जी जस्ट रिड्यूस इट टू हाफ। इतनी तुम लिख रहे हो, उसको आधे में लिखना सीखो कि आधे में कैसे आप लिख सकते हो। 20-year-old high school teacher, she was posted highway on when she was there in the harbor, she was lot of women are uneducated। नहीं बेटा, ये तो फिर बिल्कुल आगे ना, एजुकेटेड वगैरह का तो कुछ है नहीं, ये बच्चे हैं क्लास के जो यहाँ पर हैं, TAT2 में जो है क्लास के बच्चे हैं जो यहाँ बाहर आउट हो गए, दैट्स ऑल। ये लड़की हंस रही है, डांस कर रही है, थोड़ा सा माहौल ठीक बना रही है, ठीक है? सो आपका आउट ऑफ स्टिमुलस हो गया जाके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो अभी कल से जो है इसको आधा करो, जस्ट रिड्यूस इट टू हाफ एंड देन स्टार्ट राइटिंग, लेट मी सी उसके बाद कैसे होता है। जी थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक करो, और अपना वही कह रहा हूँ, आपकी ना एक एक चीज जो दिखती है दैट शोज आपका काम करने का तरीका, आपकी डेडिकेशन, आपका क्या है, ठीक है? ये तुमने स्कैन किया, खुद एक बार भी नहीं देखा होगा क्या किया है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो है डाल दो, सर को ढूंढते रहेंगे खुद। ये गिव सनी टू मदर बर्थडे इज जॉयबल, ओके। ये चीजें जो है ना, डोंट पर्सनलाइज इट, ठीक है? मेक इट इन अ थर्ड फॉर्म, elder brother, younger brother successful, again elder brother practice, elder brother praise his younger brother for success in SSB, doesn't mean है ना success in SSB helps to get praise, बस वो लिखो, don't involve there hard work। जैसे ये ठीक लिखा आपने, मेकिंग प्लान, ये ठीक है, feel pride meet with during, again तुमने बार बार वही है, यहाँ भी SSB, यहाँ भी SSB, उसी को लिखे जा रहा है, ठीक है ना? दोनों चीजें कर रहा है। तुम ये लिख रहा है कि फादर प्राइड हो गया, वो हो गया, खुद का बारे में लिखो, अपना क्या लिख रहे हो। रीडिंग बुक यूज लोनलीनेस, ओके। मेयरली कमेंट्स ऑफिसर टेक चैलेंज टू, ओके। डूइंग स्टडीज ऑनेस्ट बाई, ओके। ब्रदर सिलेक्शन, अगेन फील, अगेन तुम वही यार, यस कितने बार वही घिसे पिटे लगे रहोगे सर चला, यहाँ तो टाइम है, तुम उसमें कर रहे हो, बाद में एग्जाम में क्या करेगा? प्रोग्रेस डेली न्यूज़पेपर एनालाइज, ठीक है। सक्सेस यंग, अगेन यंगर सिस्टर हार्ड वर्क से सक्सेस। तुम ना सुधर जा, मैं डंडे मारूंगा तुझे, मैं ऐसे नहीं बनोगे बच्चे। लाइक टीचर अगेन, फिर सिलेक्ट टीचर, यहाँ पर है। तुम टाइम के साथ कर रहा है या टाइम लेके कर रहा है? अभी क्या कर रहे हो? हाउ यू आर डूइंग दिस? मतलब 15 सेकंड में लिख रहा है या टाइम लगा के आराम से धीरे धीरे लिख रहा है आजकल? नहीं सर, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ सर। बेटा मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस दिन कार सीखना शुरू करोगे ना, 5वीं गियर पे डाल के 500 की स्पीड पे ले जाना, बहुत बढ़िया तुम्हारा कार सीखोगे। क्या बोला था मैंने शुरू में तुम्हें? व्हाट डिड आई टेल यू? सर धीरे धीरे करना है।
यार तुम्हें चलना नहीं आता, तुम गाड़ी से भागना शुरू हो रखे हो, ढेला नहीं आ रहा, तुमने 15 सेंटेंसेस में साला एक भी ढंग से नहीं बना रखा है, व्हाई कांट यू फकिंग गो बैक सी एंड टाइम पे देख के नहीं कर सकता है क्या? अपना करना है तो डोंट कम टू मी ना यार, कितने बार तुम्हें यही समझाऊं मैं? you'll never be successful if you do like this. तुम्हें शुरू में मैंने ये बोला था, पहले 3-4 5 दिन जो है, जब तक मैं नहीं बोलता हूं, अपना टाइम लो, 1 घंटा लेना है 1 घंटा लिखो, धीरे धीरे लिखो, देखो कहाँ गलती करिए, फिर वापिस जाओ, फिर लिखो उसको। एटलीस्ट तुम्हें रियलिटी तो पता लगेगी क्या ठीक है क्या गलत है। अभी लगे जाओगे घुग्गों की तरह, साला 6-6 साल लगे रहोगे, फिर बोलोगे सर मुझे फौज खराब है। क्लाइंब माउंटेन, क्लाइंब माउंटेन, सेफ्टी टास्क, सीनियर हेल्प टू अगेन, जो अगेन सीनियर ने हेल्प किया, साला तुमने खुद क्या किया है? व्हाट इज योर इंडिविजुअल कैन दिस थिंग? कंप्लीटिंग टास्क, प्लानिंग हेल्प्स टू कंप्लीट टास्क इन टाइम। प्लानिंग ये ठीक लिखा है आपने, वीकनेस ओवरकम बाय, ये ठीक है, अवेयरनेस हेल्प्स रिफॉर्म करप्शन, ठीक है, ये ठीक है। टाइम लो, धीरे लिखो, बाकी लोगों का पढ़ो, 5 लोग हैं यहाँ पे, सबका देखो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, एंड देन लुक एट देम। बाकी first we will let some few members of to take, he will tell them new member do continues and take few with him to take fall person do first aid। थोड़ा सा इसको पहले तो 2 लाइनों में लिखना सीखो, ठीक है? 2 लाइनों में लिखो क्या लिखना है आपने। इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज, रेस्क्यूड द पर्सन, प्रोवाइडेड फर्स्ट एड एंड कंटिन्यूड विद द मिशन। खत्म। ये 4 लाइनें लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी, दिस इज नॉट अ स्टोरी। ये तो आपने ऑलमोस्ट स्टोरी इतनी, तो अक्षय इतनी स्टोरी लिखता है, इसकी स्टोरी राइटिंग टीएटी अक्षय की इन 5 लाइनों में खत्म हो जाती है, जितनी तुमने एसआरटी लिखी है उतना नहीं लिखना है। सडनली स्टॉप द वेट फॉर द स्ट्रीम आफ्टर दैट गो हेड। बेटा साइट सीइंग है ना, सडनली स्टॉर्म आ गया है, टाइड एकदम बढ़ गया, आप वहां खड़े होके वेट थोड़ी करोगे उसका। तूफान आ रहा है सी में, साला भागो जान बचा के और दूसरों को भगाओ वहां से, अथॉरिटीज को बताओ क्या हो रहा है। स्पीक विद फ्रेंड, फाइंड द रीजन फॉर बॉस दिस, इफ फ्रेंड इज नॉट एबल टू, अगेन यहाँ पे लिखा हो क्लियरली, हरासमेंट हो रही है उसके, ठीक है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, यू हैव टू गो टू एंटी से हरासमेंट हेल्पलाइन पॉसिबल स्पीक ज्वाइन। इफ देखो इफ कभी भी नहीं होता है यहाँ पे, यू हैव टू गिव योर रिएक्शन जो आपने करना है। देयर नथिंग कॉल्ड इफ आई विल डू दिस, इफ दिस थिंग, आपको एक सिचुएशन दी गई है, आपने करना है, दिया है। इफ पॉसिबल कुछ नहीं, मैं यहीं से इफ से आपको काट के खत्म कर दूंगा। आपने लिखना है स्पीक टू से इंटरव्यूअर, पोस्टपोन द इंटरव्यू, गिव द एग्जाम, खत्म कहानी। देयर इज नथिंग कॉल्ड ifs and buts। टेक शेल्टर, राइट हाउस, मेक अरेंजमेंट्स देयर वॉल फॉर स्टॉप रेन। Okay, he address with another college, takes help from him, speak with family member and go there if possible। again if possible कुछ नहीं होता यहाँ पे। yes। he with another colleague, आपने 6 है कि he address, क्या लिखा तुमने, he another colleague, take help from him, speak with family members and go to possible join back। थोड़ा सा पहले तो बॉस को, जिसके लिए पार्टी दे रहे हो उसको बात करो कि भाई सर ये प्रॉब्लम हो गई है, go and attend that back, join, something like that। yes again do apologize तो ठीक है, फिर ब्रदर के लिए क्या किया उसको भी समझाओ। call the ambulance, shifted to possible, again if possible, what is if possible, inform the victim यार। if possible inform to victim बिल्कुल गलत है तुम्हारा ये। give some water to the bride, give first aid, ambulance, speak with a friend, father better, right, okay, call ambulance and goes to the hospital, father doctor hospital, fracture confirmed, then admitted। again if fracture, if this, if that, straight away situation लिखो, that's all, बाकी कुछ नहीं लिखा है। बराबर कॉलम ये ठीक है। तो आपका बच्चे अगर सुनोगे तभी काम होगा, अपनी करनी है तो अपनी करो फिर, ठीक है। कोई जो तुम्हें सिखा रहा है प्लीज आस्क हिम कि भैया, ठीक है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, समझ गया? यस। तो जितने दिन मेरे साथ हो उतना प्रैक्टिस करो। अगर कोई एसएससी में साइकोलॉजिस्ट रहा है 4-5 साल उसने काम किया, प्लीज गो एंड आस्क हिम, ठीक है, तो मेरे से मत पूछो। अगर मैंने साला कम से कम नहीं पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू लेकर एसएससी में काम करवा के फिर मैं आके यहाँ तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि सर गलत सिखा रहे हैं तो वहीं जाओ फिर। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अपनी फिर करो वैसा जो है, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम साला 10 दिन काम करोगे यहाँ से निकल जाओगे, मुझे क्या मतलब है तुम्हारे से, लेकिन मुझे मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि साला यहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट करके जाओ और उधर ये करो, ठीक है। आकाश, वेयर इज योर वर्क?
सेंड कर रहा हूँ। हाँ? Yes, sir. क्या हो गया? कर रहा हूँ सर, वो कंपाइल नहीं हो पा रहा है। ऑफिसर बन गया तुम तो, है ना? एक बार कोर्स कर लिया, ऑफिसर बन गया, क्या जरूरत है दोबारा करने की? सही है ना? नहीं सर। बिल्कुल, और वही है, वही लग रहा है ना कि तुम्हारा मतलब हो गया, अब क्या जरूरत है करने की? साला बैठा हूँ यहाँ पे, सर 2,500 ही तो है, सर ने ले रखा है। साला 15,000 लिया होता तो शायद तुम कल ही रात को भेज देता मेरे को। वैल्यू समझो अपने टाइम की और मेरे वाली भी। ठीक है, अभी भेज देना, आई विल चेक एंड सेंड इट बैक टू यू एंड स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट, डेडिकेटेड एफर्ट। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा थोड़े का ही फायदा उठाओ। मुस्तफ़ा, आपने भी नहीं भेजा मुझे, ठीक है? सो दिस इज द वे थिंग्स विल नॉट वर्क। अगर आपको लगता है कि आके 5वें दिन आऊँगा और ये कर लूँगा, वो करूँगा, वैसा होगा, वैसे काम नहीं चलता है। बट नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलो गाइस, ठीक है, आई अभी मैं दूसरे वाला जो है अभी भेज दूंगा आपको। प्लीज टेक योर टाइम एंड फिनिश इट ऑफ एंड सेंड मी इन टाइम। कोई शक है? ओके, या आई नॉर्मली आई आस्क द क्वेश्चंस। ओके, दिनेश, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. आकाश, एनी क्वेश्चन? सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। टाइम तो किसी का मैनेज नहीं होता है। जब से मैं ना स्कूल में था और अभी तक भी ना, 25 साल की सर्विस के बाद ही मुझे ऐसे लगता है टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। तो एक ऑफिसर लेवल पे ना आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग विच यू लर्न एज अ आर्मी ऑफिसर। ठीक है? आर्मी ऑफिसर से किसी से भी आप से सुनोगे, वो कभी ये नहीं बोलेगा यार मेरे को टाइम नहीं हो पाता या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज द लास्ट थिंग विच यू विल हियर फ्रॉम एनी आर्मी ऑफिसर। सो थोड़ा सा सीखो। ओके, ईशान, एनी क्वेश्चन? No. ओके, शुभम? Sir, one question was is there in that last stat जिसमें वो लड़का था छोटा वाला, आपने बोला, तो सर उसमें बाहर से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने से विल इट बी फाइन कि उसको ही अगर मैं हीरो दिखा के अगर कंटिन्यू करूँ तो? यू कैन ऐड अनदर कैरेक्टर, बिकॉज़ छोटा बच्चा है ना वो। इट्स अ स्मॉल किड, मे बी 7th 8th में पढ़ रहा है, तो 7th 8th वाले को अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता ना, देन यू कुड हैव मेड हिम आल्सो। अगर ये बहुत छोटा है, मतलब इज क्वाइट यंग है ना, तो आपको थोड़ा सा ट्राई टू कीप सिमिलर टू योर एज एज योर हीरो। मतलब मे नॉट बी नेसेसरी, बट देन 6th 7th के बच्चे को पुटिंग हिम एज अ मेन हीरो एंड ऑल, अवॉइड व्हेन यू कैन से डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ही इज ऑलरेडी इनटू चप्पलों में घूम रहा है, वो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द विलेज गोइंग ऑन। तो थोड़ा सा आप कर सकते हो इसको, देयर इज नो हार्म इन दैट। मैं ऐसा दिखा दूं कि वो स्ट्रगल करके पढ़ाई में फर्स्ट ला रहा है, ये सब कर रहा है, तो वर्केबल, या वर्केबल, वही चीज तो इस स्टोरी में मैं ट्राई कर रहा था सर या कि कर उसने सकते हो, बट वो कर रहा हूँ, बट देन योर कंप्लीट बैकग्राउंड इज नॉट देयर। आई एम नॉट, योर मेन स्टोरी शुड कम कि भाई क्या कंडीशन है, रूरल एरिया है, रोड नहीं है, हल चलता है, वो चल रहे हैं, दोज आर द सिचुएशन व्हिच इज देयर, उसके बावजूद ही इज वर्किंग दैट वे, देन इट इज फाइन। Stimulus has to be the priority, 80% has to be related to the stimulus. ठीक है? Catch you up tomorrow. Bye bye. गुड नाइट सर। Good night.